नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class I am going to discuss article number 123. So let's discuss with the powers of the president. See, so this topic of president is very important for your prelims and also very important for your mains. प्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं, है ना, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड दैट टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बट ऑल्सो फॉर योर प्लिम्स। तो कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो मेंस की ओरिएंटेशन भी रखते हैं और प्लिम्स की भी रखते हैं, एंड उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। इट मीन्स व्हाट? लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जनरली लॉ मेकिंग पावर किस में वेस्टेड है? पार्लियामेंट मेक्स द लॉ। पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, बट समटाइम्स president also exercises the same power. See, and this is what question is for you. This is, please see this, Punjab judicial services में से the president's power to promulgate ordinances during recess of parliament is contained in article what? 123. So we are going to study article 123, and the very heading is very important for you. The heading, this you can see the questions in your prelims from the heading itself. Heading से ही question आया हुआ है, which you have seen this. Punjab Judicial Services, which article? They have asked the article. And the second question, this is article 123 of the Constitution deals with what? Power of the President to promulgate ordinance. समझे? तो power to promulgate ordinance. Ordinance की power कहाँ पर दे रखी है? It is article 1, 2, 3. 1, 2, 3. Got it? This is 123. तो पहला ही क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का है। चलिए, गुड। तो लेट्स कम टू द हेडिंग ऑफ दिस। प्लीज सी दिस हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मीनिंग छुपा हुआ है इसमें, काफी कुछ मीनिंगफुल हेडिंग। दिस इज व्हाट? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट व्हाट? टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। कब? व्हेन? During recess of parliament. When parliament is in recess, parliament छुट्टी पर है, then this is the power of president to promulgate ordinances. Got it or not? कर लेंगे? Now I come to the direct language now. See this. Please go to article 123. I have given you notes as well. Each and every line is important. Please learn this article in exact language because you will have to see it mains. Okay, and highlight your barrack or your notes as I have highlighted this. Highlight कर लीजिए इसको इस तरीके से. If at any time except when both houses of parliament are in session. This is the first requirement. If at any time except when both houses of parliament are in session, if the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. तो प्लीज ये बेरक लैंग्वेज है, इसको आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे पढ़िए, प्लीज रीड इट लाइक दिस। इफ एट एनी टाइम, यदि किसी समय, इफ इट एट एनी टाइम president is satisfied. Who is satisfied? President. What is the satisfaction? That circumstances exist. ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं। कैसी? Which render it necessary for him to take immediate action. जो कि ये जरूरी कर देती हैं कि उसी किसी बात पर immediate action लिया जाए। तो what is the satisfaction of president? That immediate action is necessary. Like what? And this is only condition is what? Except when both houses of parliament are in session. It means when the parliament is in session, when the both houses of parliament are in session, president will not exercise this power.
ये कब के लिए है? देखिए है क्या, दिस पावर इज टू वॉट, टू मीट द इमरजेंसीज। क्या लिखा है इसमें? व्हाट इज रिक्वायर्ड? इमीडिएट एक्शन। ये देखिए 2 कंडीशंस हैं, देख रहे हैं आप लोग क्या? 2 कंडीशन कौन सी हैं? पहले व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब दोनों ही सदन, संसद के दोनों ही सदन सेशन में नहीं है, ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फैक्शन है? कि सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, कैसे? इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। तो इमीडिएट एक्शन लेना हो जरूरी, और पार्लियामेंट है ही नहीं ताकि कोई कानून बनाया जा सके। तो टू मीट दैट अनफोर्सीन कंडीशंस, टू मीट दोज अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, दिस पावर ऑफ प्रोमulgating ordinance has been vested in the president. For example, आपको याद होगा, you must remember the case of Nirbhaya rape case. Nirbhaya rape case, if you remember, at that time there was an outrage in the whole of the country. पूरे देश में बवाल मचा हुआ था उस समय। कितना गुस्सा था लोगों में कि भाई जो रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट मस्ट बी punished with the highest kind of punishment. Do you remember or not? था ना? तो नाउ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? इट वाज व्हाट, दैट ऑर्डिनेंस वाज इशूड दैट दिस, एंड लेटर ऑन दोज प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी वर इनकॉर्पोरेटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट लेटर ऑन। तो इमरजेंसी करने के लिए फटाफट उन्होंने कुछ जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाने थे रेप के लिए, तुरंत ऑर्डिनेंस के रूप में ले आए वो। लाइकवाइज रिसेंटली tax structure has been changed, corporate tax has been reduced. Now this is done through ordinance. Are you getting me or not? तो कुछ भी कारण हो सकता है, there may be so many things, उसके लिए आपको immediate action की जरूरत हो सकती है, और उसके लिए आप लोग पार्लियामेंट कब सेशन में आएगी, कब वो एक्ट पास होगा, उसका इंतजार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए सेक्शन 123 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को अगर ये समाधान हो गया, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, है ना? किस तरीके का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए? कि सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। कैसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं? कि इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। तो इफ दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन व्हाट, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. वो इस प्रकार का ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, घोषणा कर सकता है जैसे कि उसको सही लगे उसमें। तो प्लीज़ रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। समझ में आ रही है आपको बात? ये बढ़ूँ आगे को मैं ऐसे। अब यहीं से देख लीजिए आगे क्या होगा। An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament. This is, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए प्लीज, सी द स्लाइड। Whether it is the ordinance by the president or the act of parliament. Act of parliament हो, parliament act कैसे बनाती है? When it is passed by the both houses of the parliament and then it gets the assent of the president. जब दोनों सदन पास कर देंगे और राष्ट्रपति महोदय उसको अपनी सहमति दे देंगे, तब एक जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया हुई पार्लियामेंट की, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट क्या है? सिर्फ एक जो एक्ट बनना है, जो कानून है, उसकी केवल घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने कि आगे से इस डेट से ये कानून होगा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट से पास नहीं हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट का सदन है ही नहीं सेशन में अभी वो। लेकिन अगर आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर लाइज हेयर। दिस इज व्हाट, clause 2, an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect. Same force and effect. This is same force and effect as the act of parliament. And please see this. ये जो लाइन है ना, प्लीज दिस लाइन शैल हैव द सेम इफेक्ट एंड फोर्स, प्लीज यू मस्ट हाईलाइट बिकॉज क्वेश्चंस इस पर आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस एज पर द इफेक्ट और फोर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट एंड द ऑर्डिनेंस।
यहाँ पर वी हैव सीन द क्वेश्चन इन प्लिब्स, तो प्लीज हाईलाइट दिस लाइन दैट इट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट, ओके, एंड देन दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो यू हैव मेट एज द प्रेसिडेंट, सपोज कीजिए यू आर द प्रेसिडेंट एंड नाउ यू हैव टू मीट आउट सम इमरजेंसी, यू हैव प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस टू मीट आउट दैट इमरजेंसी। लेकिन काम किसका था वो? दिस मेन द एक्ट, द मेन वर्क ऑफ दिस, द ड्यूटी ऑफ मेकिंग लॉ इज ऑफ होम? इट इज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि एक्ट बनाए। आपने इमरजेंसी में कानून बना दिया, ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी के पार्ट हैं और किसी वजह से जो आप कंपनी के डायरेक्टर वगैरह जो बॉसेस हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, आपने इमरजेंसी में कोई काम कर दिया। जब वो बॉस आएगा आपको, देन यू विल हैव टू शो टू द बॉस कि आपकी एब्सेंस से मैंने ये काम किया है, एंड देन बॉस विल हैव टू टेक द डिसीजन वेदर ही हैज़ टू अप्रूव इट और नॉट अप्रूव इट। उसे वो काम करना है, आगे को कंटिन्यू करना है, नहीं लिया है, या बॉस के एब्सेंस में जो आपने डिसीजन ले लिया वो सही था या गलत था, है ना। उसी तरीके से एक्ट को बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का काम है। काम करा किसने? ये थ्रू ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने। कब किया? व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। बट व्हाट अबाउट कि जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए? इसका प्रोसीजर क्या है आपका? ये रहा, दिस इज, बट एवरी सच ऑर्डिनेंस shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks. Please 6 weeks को highlight कर लीजिए, from the reassembly of the parliament, or if both the expiry of that period, or if before the expiry of that period resolutions disapproving it are passed by both houses upon the passing of second of those resolutions. ये मैं समझाया हूँ आपको कैसे है, क्या मामला है। देखिए पहले हिंदी में समझ लीजिए ढंग से, है क्या कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने, देन व्हाट इज द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट? दैट कि ये जो ऑर्डिनेंस है इट शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही सदनों के सामने इस ऑर्डिनेंस को रखा जाएगा। और टाइम मिलेगा कितना? ओनली 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 weeks। रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट के बाद में पार्लियामेंट को कितना टाइम मिलेगा? ओनली 6 weeks। अगर या तो 6 weeks में आप इसको अप्रूव कर दीजिए, विद इन 6 weeks इफ इट इज अप्रूव्ड इट विल टेक द इफेक्ट ऑफ लॉ, अदरवाइज इट शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks। 6 हफ्ते के बाद में ऑटोमेटिकली इट शैल सीज टू ऑपरेट। तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन दैट पार्लियामेंट रीअसेंबल्स एंड इट passes it, it approves it, okay, then it will become the act. Got it or not? If the parliament approves it, it will become the act. एक बात मान लीजिए 6 weeks हो गए और पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, 6 weeks हो गए एंड पार्लियामेंट कुछ नहीं करती, देन क्या होगा? It shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassemble of parliament. If parliament does not do anything, कुछ नहीं करती है पार्लियामेंट, then after 6 weeks it automatically will have ceased to, it will cease to have any effect in this. Effect will goes after how much time? 6 weeks. अब 6 weeks पर ही देखो, this is the question. An ordinance lapses. Question in plebs. An ordinance lapses after 6 months of its promulgation. अधिकतर लोग 6 महीने कर देते हैं क्योंकि 6 months कई जगह मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दिस इज नॉट 6 months. After 6 weeks after its publication in the official gazette, या after 6 weeks from the date of assembly of houses of the legislature, whenever the council of ministers takes the decision. Answer is 6. C. समझे? तो 6 weeks कब से? रीअसेंबली करने से। समझ बात है नहीं आपको? और इसी उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि 6 weeks कहां से? फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ देयर मे बी क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर? 2 houses, लोकसभा एंड राज्यसभा।
हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देयर आर टू हाउसेस। नाउ ये भी हो सकता है कि वन हाउस देयर में भी डिफरेंस ऑफ डेट्स ऑफ रीअसेंबली। हाउस ऑफ पीपल शुरू हुआ 1 तारीख से और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सेशन शुरू हुआ 10 तारीख से, तो देयर में भी डिफरेंस इन डेट्स ऑफ बोथ हाउसेस। एंड यहां से क्वेश्चन अगेन प्रीलिम्स से पूछा जाएगा आप लोगों से। तो दिस इज माय ड्यूटी टू लेट यू नो फ्रॉम वेयर क्वेश्चन में बी आस्क्ड, एंड इट इज योर ड्यूटी टू highlight it, to note down it, and then get it done, learn that. So now when there is difference between the dates of reassembly of the sessions of both houses, suppose Lok Sabha reassembles on the 1st of the month and the Council of State reassembles when 10th of the month, so there is difference of 10 days now. So from which date you will count this 6 weeks? This is the answer in this. Go to explanation to 123. Please go to the section, sorry, explanation to 123, where houses of parliament are summoned to reassemble on different dates. Please highlight this, different dates. The period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause. From the later of those dates, जो बाद की डेट है वहां से आप काउंट करेंगे 2 वीक्स और 6 वीक्स का टाइम। तो दैट पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स, एंड प्लीज राइट P फॉर प्लिम्स ओवर दिस। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। प्लीज रेज हैंड अगर बात से में आ गई हो तो। ठीक, गुड। So this is the question. See this, power of the President of India to issue an ordinance is executive power, legislative power, constituent power, quasi judicial power. Answer is legislative power. So got it? Again this is question many times asked. Legislative power. Power of the President to promulgate ordinance is what? Legislative power. Now again see this. This is very important. Please go to clause 3. Again very important power. If and so far an ordinance under this article makes any provision which Parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void. This is the direct language of clause 3 of 123. Try to understand this. क्या मतलब है इस बात का? क्लॉज 3 को आप ऐसे देखो इसको, इफ एंड सो फॉर एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन। इस प्रोविजन यानी कि 123 इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि ऑर्डिनेंस कोई ऐसा प्रावधान करता है, हिंदी समझ रहे हैं ना आप लोग, यदि 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस कोई ऐसा प्रावधान करता है, कैसा, विच, कैसा, पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू इनेक्टेड, कि जिस प्रावधान पर, जिस विषय पर पार्लियामेंट भी कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ द ऑर्डिनेंस इज मेकिंग सच ए प्रोविजन, सच लॉ on which even the Parliament was not competent to enact. Are you getting this point? You are making law, or you are promulgating ordinance on such a topic on which even the Parliament would not be competent to enact. It means then what will be the fate of that provision? It shall be void. Please raise hand. नहीं समझ में आया आपको, कुछ लोगों को दोबारा समझाता हूँ। देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एंड देयर आर 3 लिस्ट फॉर दैट: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्टेंट लिस्ट. Parliament is not empowered to make law over the state list subjects. Please raise hand अगर बात समझ में आती हो तो. I am repeating it. Parliament is not empowered to make law over the subjects mentioned in the state list.
only the state legislature can make law over that. Is it clear? Then it means what? If the ordinance is covering any of that subject, or even the ordinance cannot be promulgated on those subjects which are not within the power of the parliament. It means what? The parliament ordinance can be made only on the subjects which are in the legislative competence of the parliament. Are you getting something? Please raise hand. हिंदी में समझ लीजिए, जिन जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा किया जाता है, बियॉन्ड पावर किया जाता है, देन सच ऑर्डिनेंस शैल बी वॉइड। एंड वॉइड पर ही आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्डिनेंस बियॉन्ड कॉम्पिटेंस बना दिया गया है तो उसका फेट क्या होगा? इट शैल बी वॉइड। कर लेंगे आप लोग? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो। गुड। सो this was the procedural requirement. What? Ordinance shall be laid before both houses of parliament, got it, and it shall cease to operate at the expiration of 6 weeks. तो कर लेंगे आप लोग? नहीं। and next part, whether it can be withdrawn or not, it can be withdrawn at any time by the president. So this is all about ordinance. And please see the questions. Ordinance promulgated by president under 123 shall cease to operate after 6 weeks. This is question. An ordinance promulgated by the president as an indefinite life is workable only if Lok Sabha is dissolved, must be laid before parliament when it reassembles. So all questions are from Bail Act itself. बेर एक्ट अच्छी तरीके से कर लीजिए, यू कैन सोल्व ऑल योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस। प्लीज रेज हैंड अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, सो दैट आई शुड प्रोसीड फर्दर नाउ। आई बिलीव आपने ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होगा, लेकिन देखिए कितने भी अच्छा पढ़ लें, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो यकीन मानिए वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इनको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इट शुड बी मस्ट। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमें आपके गूगल रिव्यूज़ की भी ज़रूरत है। यूट्यूब पर आपके कमेंट से हमें आइडिया लगेगा और गूगल रिव्यूज़ की ज़रूरत है आपके। अगर आप कर पाएँ तो अच्छा होगा। विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस वीडियो।